movement of the rotor with time, and this shows this is having a free oscillation with a sustained oscillation, because these oscillations are sustained because we consider there is no friction, there is no damping of the winding, there is no effect of the governor action. Because of that, it is observed that there will be sustained oscillation, and these oscillations frequency can be given by the frequency is given by under root PR by M, if and where PR is the synchronizing power coefficient, and it may be unstable also. If PR is negative, then the delta will continuously to go on increasing. We can also find the magnitude. So there is a formula for finding the magnitude, there is a formula for finding the frequency of oscillation. Although the effect of friction is always be there, effect of damper winding will also be there, so they will be damped out. But even if they don't damped out, then this is the frequency of oscillation. So this was the formula which we derived yesterday. Then we have considered the effect of damper winding. If we consider the effect of damper winding, then this in this swing equation, this additional term called d delta omega by dt comes, and if you solve it, the oscillation will be like this. These are the damped oscillation, and frequency of oscillation is given by this formula. This S is equal to j omega minus alpha plus minus j omega dt. It is alpha attenuation constant, and this is the damped frequency. PR by omega was if the damping is 0, from here you see if the damping is 0, the same formula J PR by M is there. But because of the damping, the frequency will be slightly less by than the natural frequency. So this is the frequency formula for frequency omega d. Omega d is equal to under root PR by M minus d square by 4m square. This is the formula in case of a damped oscillation. So damped oscillation frequency is given by this. A0 is the magnitude. Up to now we have seen, and then we have seen the effect of governor. If the governor action is also there, governor what governor do? Speed governor do that it increases the damping, because it allow the fuel to enter, allow to adjust the fuel so as to meet the demand, and accordingly the D we have seen in the yesterday discussion that the damping D increases. So this D become D1 plus D2. So if it becomes D1 by D2, attenuation increases, this alpha increases, and the frequency slightly decreases. So this was the case. Now we can consider before going to effect, see this steady state effect, the effect of ABR on the stability. Before going to that, let us have one numerical question on the theory which we described here. That is how the frequency, how the magnitude is calculated for the small disturbance. So let us have one numerical question. Here this is a question. 60 Hz जनरेटर, तो जो अभी तक जो मैंने वट एवर हैज बीन रिव्यूड सो फार, उसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है? एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस वट एवर? हाँ, तो आप इसमें जो फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, उसे आप एक कॉपी पे एक पेपर पे नोट करके रख लें. फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला वाज omega n was under root PR by M if it is a undamped frequency, undamped oscillation, and if it is damped oscillation, frequency was under root PR by M minus d square by 2m square. इसको नोट करके रख लें, तभी आप न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ें. तो हियर इन दिस 60 हर्ट्ज जनरेटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन इनफाइनाइट बस. ये एक जनरेटर है जो इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, and this generator is operating at voltage of 1. इस पे टर्मिनल वोल्टेज 1 per unit है. सिंक्रोनस रिएक्टेंस इतना है, and generator no load voltage is when load is not connected, then voltage is this, or you can say this is a E, excitation voltage is 1.1 per unit. Its inertia constant is given 4 megajoule per MVA. ये इसका inertia constant है. Now generator is suddenly loaded to 60% of its maximum power. 60% लोडिंग कर दी. 60% लोडिंग का मतलब मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? मैक्सिमम पावर
which can be delivered from the generator is given by total power is given by P is equal to EB by X sin delta, where EB by X is the PM, maximum power, P max. So P is equal to, or PE, electrical power output from the generator is given by P max sin delta, where P max is equal to EB by X. So you can say P is equal to P max sin delta, and P immediately P has been PE, electrical power taken out from the generator, is 60% of P max. 60% of P max. So you can say power, as I know, P is equal to P max sin delta. So P by P max is equal to 0.6. Okay, is this clear or not? P by P max is equal to 0.6. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हरप्रीत? Is this point clear? Generator is suddenly loaded to 60%. इसका मतलब क्या हुआ? PE electrical power is 60 and P max is 100. So PE by P max is equal to 0.6. Okay. Now it is saying determine the frequency of resulting oscillation in the generator. मतलब क्या हुआ? इस पर जनरेटर नो लोड पर काम कर रहा था. जैसे ही आपने 60% लोड किया तो क्या होगा? Initially say there is no electrical load on the generator. ये सिंपली सप्लाई दे रहा है ग्रिड में और उस पर 60% लोड लगा दिया. तो लोड लगाएंगे तो क्या होगा? पावर एंगल, when there is no load, when there is no electrical power output from the generator, then according to P is equal to P max sin delta, delta will be, when P is 0, what will be the delta? Jagbir, Mr. Jagbir. Diksha. Yes, sir. हाँ, if electrical power output is 0 from the generator, what will be the power angle? Sir, 0 ही होगा. हाँ, power P is equal to P max sin delta. So P is 0, तो P max sin delta, delta will be 0. और 60 डिग्री कर दिया तो अगर एंगल हमने 60 डिग्री कर दिया, सॉरी पावर आपने सडनली 60 डिग्री बढ़ा दिया, तो PE बाई P max इज 60 डिग्री. तो P इज इक्वल टू P max sin डेल्टा. तब डेल्टा कितना होगा? PE इज इक्वल टू P max sin डेल्टा. PE बाई P max 0.6 हो गया और sin डेल्टा, तो sin इनवर्स 0.6 विल बी दी डेल्टा. sin इनवर्स 0.6 विल बी डेल्टा. जैसे ही आपने 60% लोड लगा दिया तो डेल्टा हमारा 0 से बढ़ के कितना होने, sin इनवर्स 0.6 मतलब 36.87 होने लगेगा. एकदम से नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम. डेल्टा बढ़ना शुरू करेगा. रोटर जो है, रोटर 0 से स्टार्ट होकर 0 से अपनी एंगल लेगा, बढ़ता जाएगा एंगल और 60 इतना 36 डिग्री के अराउंड 36.87 पे पहुंचेगा. उस समय क्या होगा? उस समय इतने पे वो स्टेबल होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल लोड आपने बढ़ा दिया था, इतने एंगल पे 36 डिग्री पे वो स्टेबल होना चाहेगा. बट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया की वजह 36 डिग्री पे ये रहेगा नहीं, आगे और बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा और ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा. रोटर विल ऑसिलेट. यही पूछ रहे हैं उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशन की. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. आल्दो डंपिंग की वजह से क्या होगा, ये पहले मैग्नीट्यूड इतना था, फिर मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ, फाइनली ये 36 पे स्टेबल हो जाएगा. लेकिन अगर स्टेबल नहीं हो, डिपेंडिंग अपॉन द डैम्पिंग, ये स्टेबल होगा. अगर डैम्पिंग नहीं है तो ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा या ज्यादा समय के लिए ऑसिलेट करता रहेगा. तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारा रोटर के अंदर फटीग क्रिएट हो जाएगा, शाफ्ट के अंदर फटीग क्रिएट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और हमारा क्वालिटी ऑफ द आउटपुट विल बी पुअर. तो so that's why we need to calculate what will be the frequency of oscillation. तो ये frequency, this is the power angle. So frequency of oscillation का फॉर्मूला अभी क्या बताया था जब अभी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था मैं. मिस्टर संतराम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर्मूला? हाँ संतराम, यस बताओ. यस सर. हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? रोटर जो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा उसका फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था अभी जब मैं थ्योरी रिव्यू कर रहा था उस समय क्या बताया था?
कार्तिके, मितेश, मितेश, सर ओमेगा अपॉन 2 पाई। हाँ, ओमेगा इक्वल टू सर क्या था? ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 पाई। है। यस यस, रिपीट, क्या कह रहे हैं? सर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अपॉन 2 पाई ये क्या होता है? ओमेगा ही तो पूछ रहा हूँ कितना होगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट, उससे तो आप निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, दे कैन बी कन्वर्ट टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला अंडर रूट पी आर बाई एम अभी नहीं बताया है। अभी जब मैंने थ्योरी को रिव्यू किया और फिर जब मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया तभी भी बताया, और कहा इसे नोट करके रख लो जिससे आप न्यूमेरिकल आप कर पाए। बताया था कि नहीं? सर मैं बताऊं? हाँ, यस, एक बोलिए। मिनट सर। -2 -d डिवाइडेड बाई m 2m प्लस -j अंडर रूट पी आर बाई m -d स्क्वेयर बाई 4m स्क्वेयर सर। अरे भाई देखिए, अगर डैम्पिंग नहीं है तो फॉर्मूला ये नहीं था अंडर रूट पी आर बाई एम, सिंपली ये फॉर्मूला नहीं था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर डैम्पिंग है ये फॉर्मूला पी आर बाई एम, और अगर डैम्पिंग भी है तो पी आर बाई एम माइनस डी स्क्वायर बाई 2m, ये फॉर्मूला था। नहीं, यस सर। अभी नहीं पढ़ाया मैंने, जस्ट रिव्यू भी किया है। अब इसमें पी आर क्या है? व्हाट इज पी आर? व्हाट इज दिस पी आर? पी आर का नाम क्या है और फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? मोहित, यस सर। हाँ सर बताओ। डेरिवेटिव होता है सर इलेक्ट्रिकल पी आर का फॉर्मूला क्या है और इसका नाम क्या है? पीएम कोस डेल नॉट सर। पार्डन? सर डेरिवेटिव होता है इलेक्ट्रिकल पावर का सर, ये पीआर की वैल्यू सर। इसका नाम क्या है? डेरिवेटिव, हाँ, इसका नाम है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। और इसका फॉर्मूला क्या है? पी मैक्स कॉस डेल्टा जीरो। पी मैक्स उसका था पी मैक्स साइन डेल्टा जीरो, उसका डेरिवेटिव पी मैक्स कॉस डेल्टा जीरो मीन्स उस एंगल पे, उस जब ये 36 डिग्री पे है उस समय इसका सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट कितना होगा, कितना उसे मैग्नेटिकली लॉकअप कर पाएगा, मैग्नेटिकली कपलिंग कितनी कर पाएगा। सो पी मैक्स कॉस डेल्टा, और पी मैक्स क्या है? ई वी बाई एक्स। ई क्या है? 1.1। अभी देखिए यहाँ पे ई क्या है? 1.1 अभी बताया था। वी क्या है? 1। एक्स क्या है? 1.35। इट इज 1.35, तो इट इज 1.35 ई वी बाई एक्स कॉस डेल्टा। ये 36 है, डेल्टा इज नॉट 30, इट इज 36.87। तो ये पी आर हो गया। पी आर इज इक्वल टू ई वी एक्स कॉस डेल्टा। यहाँ पे ई वी एक्स कॉस डेल्टा रखेंगे, डेल्टा इज 36.87 डिग्री। तो ये हमारा आदित्य, थोड़ी देर में बात कर लें, क्लास ले रहा हूँ। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखिए ई वी बाई एक्स कॉस डेल्टा, तो ये हमारा आ जाएगा पी आर, इतने पर यूनिट पर रेडियन। और ये क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पी आर बाई एम। पी आर की वैल्यू ये पता लग गया। एम क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला ऑफ एम इज इक्वल टू एच बाई पाई एफ। एच गिवन है 4 मेगा जूल पर एमबीए, पाई 3.14, एफ 60 हर्ट्ज इज गिवन हियर। So in this way you can find the m. PR by m is frequency of oscillation. This is the frequency of oscillation in terms of radian per second. Okay? तो इतने रेडियन पर सेकंड को हर्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस मिस्टर मोनू, मोनू आर यू लिसनिंग मी? मिस्टर मोनू,
संतराम, आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ, रेडियन पर सेकंड को हर्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, 2 पाई, जब 2 पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री होता है, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री होता है, तो 2 पाई का मतलब 1 हर्ज होता है। 2 पाई मतलब कितना? 3.14 एक पाई हो गया, इसका मतलब 6.28 एक हर्ज हुआ। तो 5.5 रेडियन पर सेकंड मतलब कितना हर्ज हुआ, वो आप निकालेंगे, इट इज 8.882 हर्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गई, मतलब इतने हर्ज पर ये लगी, देखिए 0.8 हर्ज मतलब एक हर्ज से कम, एक सेकंड में 0.8 ऑसिलेशंस, तो इतना, या 1.25 सेकंड में एक ऑसिलेशन। तो रोटर हमारा ऐसे ऑसिलेट करेगा इस एंगल के अराउंड 36 पे जाके 36.87 पे जाके, पहले एंगल 0 था, जैसे ही आपने लोड 60 डिग्री डाला ये इतना एंगल बढ़ाएगा, एंगल होगा इतना, लेकिन इसके अराउंड इतनी फ्रीक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज पे तो रन कर ही रहा है, 1500 आरपीएम पे तो रन कर ही रहा है। इन एडिशन टू दैट 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम पे रन कर रहा है, लेकिन इसके अराउंड ऐसे रन करेगा। तो ये ऐसे ऑसिलेट करते हुए भी आप ये इतना 0.88 हर्ट्ज के ऑसिलेशन करेगा, और ये ऑसिलेशन डैम्प आउट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द डैम्पिंग फैक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? This point is clear or you want to ask anything? तो न्यूमेरिकल आप लोग करते जाइए। नाउ we have seen that the effect of the damping winding on the oscillation, we have seen the effect of governor action on the stability, and now we will see the effect of AVR on the stability. We will see the effect of AVR. AVR क्या होता है? What is the AVR? AVR means automatic voltage regulator. अगर हमने, देखिए, this is our generator, it is supplying power to the infinite bus through this transmission line. इस ट्रांसमिशन लाइन में हमने मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन AVR लगा दिया यहाँ. Here at bus number 2 we have connected AVR. If we connected the AVR, what will be the effect on stability? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये देखना है. तो AVR पहले तो आपको पता होना चाहिए AVR का रोल क्या है. What is the role of AVR? Who will tell? कौन बताएगा? AVR क्या करता है? मिस्टर मोनू, रवि, मिस्टर रवि, रोबिन. सर वोल्टेज लेवल को मेंटेन करता है. वोल्टेज लेवल को, अगर हमने यहाँ AVR लगा दिया तो यहाँ पे वोल्टेज को वो कांस्टेंट मेंटेन करेगा. कैसे करेगा? दिस इज अनदर इशू. AVR कैन बी SBS टाइप और एनी अदर टाइप, लेकिन ये वोल्टेज को कांस्टेंट करेगा, वोल्टेज को मेंटेन करेगा. सो AVR लगाने का मतलब हमने ये एज्यूम कर लिया कि अब इसका वोल्टेज कांस्टेंट है. अगर इसका वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका वोल्टेज कांस्टेंट है. देखिए ये टोटल ट्रांसमिशन लाइन थी. सपोज दिस इज X1 एंड X2. टोटल रिएक्टेंस इज X1 प्लस X2 इक्वल टू 2X. तो जो पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? EVX बाई साइन डेल्टा. E ये हो गया, V मतलब E1 E2, यहाँ E2 है, E1 E2 बाई X और X 2X. तो हमारा E1 E2 बाई, इस तरह का ग्राफ है, E1 E2 बाई 2X साइन डेल्टा. ये ग्राफ है हमारा पावर एंगल, पावर डेल्टा कर्व. अब यहाँ पे हमने वोल्टेज को कांस्टेंट किया हुआ है बाई सप्लाइंग द रिएक्टिव पावर फ्रॉम हियर. तो अब देखिए इसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, फेसर इक्वेशन लिखेंगे, V इज इक्वल टू दिस V, वोल्टेज V इज इक्वल टू E2 प्लस I. अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो E2 प्लस I X2, और इफ X1 X2 आर इक्वल तो यू कैन से E2 प्लस IX is equal to V. Is this clear or not? This point, this equation is clear or not? ये इक्वेशन क्लियर है आपको?
Yes, sir. हाँ, ये जो कर्सर मूव कर रहा है इसका कलर चेंज हो सकता है कैसे भी? ये कर्सर का कलर चेंज हो सकता है क्या मितेश? सर इसमें नहीं हो सकता सर. अच्छा, ओके. So this this equation is clear now. Now this E1 is equal to V plus Ix. Okay, this is a voltage V and I is the current flowing into this, I into X1 or X1 is equal to X. So this is a E1. So I think both the equation might be clear to you. If these two equations, if you plot the phasor diagram here, ये दोनों इक्वेशन देखिए, ये दोनों इक्वेशन, नोट डाउन दीज टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक पेपर पर आप नोट कर लो, दैट V इज इक्वल टू E2 प्लस IX और E1 इज इक्वल टू V प्लस IX. दोनों इक्वेशन को आप एक पेपर पर नोट कर लो. एंड यू सी इफ यू ड्रॉ द फेसर डायग्राम, इट विल बी लाइक दिस. देखिए अभी आपको देखा दिस V, दिस E2 प्लस IX इज इक्वल टू V, E2 प्लस IX इज इक्वल टू V और IX D प्लस IX इज इक्वल टू E. ओके, तो दिस इज द फेसर डायग्राम. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? इज इट क्लियर और नॉट? यस, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ. So now since this graph, these two triangles are congruent to each other. Congruent मतलब ये voltage, this phasor is common, Ix, both are equal, both angle is 90 degree, so they are congruent to each other. इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल बराबर होंगे. टोटल एंगल बिटवीन E1 एंड E2, टर्मिनल वोल्टेज एंड जनरेटर वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज. Angle between them is the power angle delta. So this angle is delta by 2. Both are delta by 2. From here you write, if you write cos delta by 2, what is this cos delta by 2? Is equal to V by E2. And here cos delta by 2 is equal to V by E1. Okay, V by E1. So you can write E1 and E2 both. From here you can write E1 and E2. This E1 is equal to V by cos delta 2 by 2 and E2 is also V by cos delta 2. So E1 is equal to this. Here you can write the comma. Here, यहाँ पे आप कॉमा लगाना है. तो E1 is equal to V by cos delta 2 by 2, cos delta by 2 and E2 is equal to V by cos delta by 2. Is this clear or not? Is this point? Both equations might be clear to you. So this E1 and E2 if you write, देखिए पावर फॉर्मूला अभी क्या बताया था? पावर ट्रांसफर फॉर्मूला फ्रॉम हियर टू हियर इट वाज E1 into E2 डिवाइड बाई 2x sin डेल्टा. तो उसके अंदर E1 and E2 की वैल्यू रखेंगे. If we put the value of E1 and E2, this T is equal to E1 E2 by 2x sin delta. E1 की जगह ये रखा, E2 की जगह ये रखा. It is 2x sin delta. In place of sin delta, we write 2 sin delta by 2 cos delta by 2. I think this would be clear to you. So this cos delta 2y cancel to each other. You can write V square by x. This 2 cancel. Sin y cos is equal to 10 delta by 2. So now power transfer formula. Because of connecting the AVR in the mid of the transmission line, PE, power transfer formula become V square by x and 10 delta by 2. Okay? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? Any question in this? No, इसमें sir. किसी को कोई क्वेश्चन है? So this would be clear, I think. And if you plot, देखिए this E1 by E2 2x sin delta by 2, then this is the graph for this E1 by E2 2x sin delta by 2. It is a 2x, and if it will be x, it will be twice. And this V square by x 10 delta by 2, graph for this is this 10 delta by 2 means this. When delta is equal to, here you see when delta is equal to 180 degree. When delta is equal to 180 degree, अगर 180 to 10, delta by 2 will be 90. 1090 will be 1090. What is 1090? Infinity. So when delta is equal to 180 degree, it will be infinity.
मतलब ये 180 ये बढ़ते बढ़ते ऐसा इंफिनिटी की तरफ हो जाएगा। और when delta is 90 degree, it is the value can be, when delta is 90 degree, this is 45 and this value can be calculated. तो 90 डिग्री पे मीन्स क्या हुआ, 90 डिग्री पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर जब आपका कर्व पी डेल्टा कर्व जब आपका ये वाला था, तो इसे क्या कहते थे, फ्रॉम हियर टू हियर, इफ यू रिमेंबर वी सेड इट इज ए स्टेबल, up to here to here system is stable, after that system was considered as unstable। ठीक है, ये था क्या नहीं, डू यू रिमेंबर और नॉट? ये याद है, यहां तक स्टेबल होता था, इसके बाद सिस्टम अनस्टेबल होता था। यस सर। नाउ अब इसमें तो ये वापस नहीं लौट रहा है, ये तो इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब इसमें अनस्टेबिलिटी है ही नहीं, है कि नहीं है? इफ इट इज नॉट, इफ दिस रीजन इज नॉट देयर, अगर ये वाला रीजन नहीं है, बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका मतलब अगर आपने पावर यहाँ 100 मेगावाट ली तो ये एंगल है, 200 मेगावाट ली तो ये एंगल है, अगर 300 मेगावाट ली तो ये एंगल आ जाएगा, अगर 400 मेगावाट ली तो ये एंगल आ जाएगा, अगर 800 मेगावाट ली तो ये एंगल आ जाएगा। इसमें कभी ये नेगेटिव स्लोप नहीं हो रहा है। सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट हमेशा ये स्लोप इज नेवर नेगेटिव। तो ये क्या सिस्टम हमारा परमानेंटली स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट मिस्टर जगवीर? दोबारा बता दो। हैं, दोबारा बताऊं? देखिए ये यहां से लेके जब ये कर्व था EB/X sin डेल्टा, EB/X sin डेल्टा, तो ये हमारा स्टेबल रीजन होता था, ये अनस्टेबल रीजन होता था। इसको आपने स्टार्टिंग में देखा। अब कर्व हमारा ये हो गया, इसमें कभी नेगेटिव टर्म हो ही नहीं रहा है, नेगेटिव स्लोप ये वाला पोर्शन ही नहीं है। ये आप बढ़ाते जाओ डेल्टा तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, डेल्टा ऐसे, डेल्टा विल गो ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस, डेल्टा ऐसा बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इसमें नेगेटिव स्लोप ही नहीं है। तो सिस्टम कोई भी लोड लगाएं, एनी लोड इफ यू कनेक्ट द सिस्टम विल बी स्टेबल। मिस्टर जगवीर, आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री विद इट? हाँ जगवीर, कार्तिकेय, संतराम, यस सर। हाँ, इस बात से आप एग्री हैं कि इसमें कितना भी लोड लगाते जाएं और डेल्टा स्लोप नेगेटिव नहीं होगा और सिस्टम स्टेबल बना रहेगा। डू यू एग्री विद इट? सर हैं, तेज बोलिए। यस सर। हाँ, but you remember, no such system is possible where whatever load you increase, सिस्टम हमेशा स्टेबल रहे। ऐसा कोई सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि लोड कुछ भी लगाओ, लोड कुछ भी लगाते जाओ। थ्योरेटिकली इट सीम्स, देखिए थ्योरी में क्या हो रहा है, ये डेल्टा इट बिकम 90 इनफाइनाइट, एट डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री इट बिकम इनफाइनाइट। तो ये सिस्टम हमेशा के लिए स्टेबल हो गया, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। भाई प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल एंड थ्योरेटिकली ये क्यों आ रहा है? थ्योरेटिकली ये आ रहा है, प्रैक्टिकली हम जानते हैं कोई भी सिस्टम इतना स्टेबल नहीं हो सकता कि उस पर कुछ भी लोड लगा दें वो हमारा स्टेबल बना रहे। जैसे कि सपोज करिए आपके सिर पे 5 kg वेट पे आप स्टेबल रहते हैं, 5 की जगह 10 kg लगा दें तो आप स्टेबल रह जाएंगे। ABR लगा दिया, ABR मतलब क्या है, एक एडिशनल कुछ सपोर्ट दे दिया, एडिशनल सपोर्ट दे दिया जिसकी वजह से आपकी 5 की जगह आपकी वेट, आपके सिर पे 10 kg वेट रख दिया, आप स्टेबल हैं। 20 kg रख दिया, 100 kg, 1000 kg रख दें तो आप स्टेबल बने रहेंगे। यस, हाँ मिस्टर कार्तिकेय, जगवीर, यस सर। हाँ स्टेबल बने रह पाएंगे कि नहीं? 1000 kg वेट रख दें आपके सिर पे, आप स्टेबल रह पाएंगे? नो सर। नहीं। क्यों को आप ABR लगाया था? ABR मतलब आपके साथ में संतराम को खड़ा कर दिया था एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, फिर भी आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं 1000 kg पे। क्या रीजन है उसका? क्यों नहीं रह पाएंगे? प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग? थ्योरेटिकली ये प्रूफ हो गया कि आप स्टेबल हो पाएंगे, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि
हाँ, कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है अभी मुझसे? कौन बात कर रहा है? जगवीर? यस, हु इज स्पीकिंग? कौन बोल रहा है? संतराम। संतराम बोल रहे हैं। हाँ, तो आपके बगल में जगवीर को खड़ा कर दिया था आपको सपोर्ट करने के लिए, तो क्योंकि उसकी लिमिटेशन थी, कितना सपोर्ट कर सकता था उसकी लिमिटेशन थी। आप 5 की जगह 10 केजी हो गया तो वो आपको सपोर्ट कर पाया था, 1000 केजी कर दिया तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो अनस्टेबल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, हमने ये एज्यूम किया हुआ है, व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, द इफेक्ट ऑफ एबीआर ऑन स्टेबिलिटी। तो हमने यहाँ एज्यूम ये माना था, दिस एबीआर इज सच दैट इट मेंटेन्स द कांस्टेंट वोल्टेज। एबीआर ऐसा है कि कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा, कुछ भी लोड हो यहाँ। बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि लोड कुछ भी हो, ये कोई भी एबीआर ऐसा नहीं हो सकता। एबीआर, नो एबीआर मे बी सच दैट इट हैज द इनफाइनाइट कैपेसिटी। इनफाइनाइट कैपेसिटी मीन्स कुछ भी लोड हो ये इसके वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। ये इसकी लिमिटेशन पे डिपेंड करेगा, एबीआर किस टाइप का है, कितनी कैपेबिलिटी है। अगर एबीआर की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती तो इस वोल्टेज को वी को हमेशा मेंटेन कर पाता, लेकिन मतलब इनफाइनाइट मतलब क्या, इनफाइनाइट रिएक्टिव पावर ये सप्लाई कर पाए, क्योंकि अगर लोड इनफाइनाइट हो सकता, लोड बढ़ता चला जाएगा, तो एट ऑल द टाइम AVR should be able to supply the reactive power to compensate this load. Then it is okay. Then only it can maintain the constant voltage. But it cannot maintain the constant voltage until unless its limit is coming. जैसे इसकी लिमिट आएगी ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रख पाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रख पाएगा, ये वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। तो हमारा जो ये हमने लेके चल रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क। एंड फाइनली जो हमारा ये ग्राफ आया है, दिस विल नॉट बी दी आइडियल ग्राफ, प्रैक्टिकल ग्राफ विल बी डिफरेंट। प्रैक्टिकल ग्राफ क्या होगा, इसकी जगह ना ये होगा ना ये होगा, प्रैक्टिकल ऐसा ग्राफ आएगा। होगा? तो अब प्रैक्टिकल ग्राफ एबीआर, पावर एंगल कर्व फॉर प्रैक्टिकल एबीआर, ओके, विदाउट एबीआर, विद एबीआर, विद इनफाइनाइट कैपेसिटी, आइडियल एबीआर। तो ये भी देखिए, अब आप ये कर्व है डॉटेड लाइन, दिस कर्व इज अगेन बेटर देन दिस कर्व विदाउट एबीआर। एबीआर के कंपैरिजन में, विदाउट एबीआर के कंपैरिजन में तो ये बेटर है, क्योंकि देखिए इसमें डेल्टा ये जो 90 डिग्री पे सिस्टम अनस्टेबल हो रहा था, सिस्टम वाज गेटिंग अनस्टेबल एट 90 डिग्री, यहाँ पे ये देखिए दिस एंगल कैन बी 75 डिग्री। अब हमारा सॉरी 90 और 90 ये कैन बी 150 डिग्री और 140 डिग्री, ये 140 डिग्री आ गया। तो हमारा सिस्टम 140 डिग्री पे भी अनस्टेबल हो रहा है, 140 पे जाकर अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। अप टू 140 इट इज मेंटेनिंग द सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट एज ए पॉजिटिव। सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट यहाँ तक मेंटेन रहेगा, मतलब अगर एंगल 140 भी हो गया तो उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा और सिस्टम को स्टेबल रखेगा, उसके बाद सिस्टम अनस्टेबल होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर है? ओके ओके। नाउ देखिए, अभी तक आपने ये देखा, एक जनरेटर है उस पर डिस्टरबेंस हो रहा है, वन जनरेटर इज कनेक्टेड विद द ग्रिड, और उस पर लोड इंक्रीज डिक्रीज करने पे उस पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, और उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड यू आर एबल टू मेजर। लेकिन नॉर्मली देयर इज नॉट ओनली वन जनरेटर, पावर प्लांट में कई एक जनरेटर होते हैं, इट मे हैव द फ्यू जनरेटर्स और ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम बस। एक ही बस पे कई एक जनरेटर कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक ही बस पे अगर कई एक जनरेटर कनेक्टेड है, देन यू कैन से इट इज मल्टी मशीन प्रॉब्लम। मल्टी मशीन प्रॉब्लम मतलब इस तरह से लाइक दिस, ये एक ही बस है, सपोज करिए एक बस, ये अलग अलग बस नहीं, सपोज एक बस है, इसमें कई एक जनरेटर कनेक्टेड है, इस तरह का अगर सिस्टम है तो लाइक दिस, इफ what is this,
एक एनीवे तो एक ये ऐसा बस है, दिस इज ए वन बस, और सो 1 2 3 4 5 जनरेटर आर कनेक्टेड। तो हम उसका देन हाउ विल फाइंड आउट द ऑसिलेशन, क्योंकि ऑल द जनरेटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम बस, और लोड, इफ द लोड इलेक्ट्रिकल लोड चेंजेस फ्रॉम द बस, तो ये जो इलेक्ट्रिकल लोड चेंज होगा उसकी वजह से सभी जनरेटर एक साथ ऑसिलेट करेंगे, मींस सबकी फ्रीक्वेंसी एक साथ इंक्रीज डिक्रीज, जैसे ऑसिलेशन ऑफ ऑल जनरेटर विल ऑल द जनरेटर विल ऑसिलेट इन कोहेरेंट विद ईच अदर, मतलब सारे जनरेटर एक साथ इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तब when all the generator are in coherent, then how you will find the frequency, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम कैसे करेंगे? in such case the total kinetic energy is seen. total kinetic energy, एक जनरेटर है उसकी kinetic energy half I omega square, or you can say energy, kinetic energy defined as H into S. And total kinetic energy will be W1 plus W2 plus W3 and Wn. If n generators are connected, total kinetic energy of the generator will be given by this. And kinetic energy is no, H is the inertia constant of that machine. So H1S is the, S1 is the rating of that, H1 is the inertia constant, S1 is the rating. So it is the total kinetic energy of W1, kinetic energy of W2, total kinetic energy will be given by this. So this can be made, all the generator can be considered as a equivalent to a one generator having inertia constant equivalent to HEQ, and its common base, whatever this you can select, common base can be the maximum of this, इसमें से जो सबसे बड़ा हो उसे ले लें, और any other you can select. अगर सपोज ये 100 MVA का है, ये 200 MVA का, 300 MVA का, अब कॉमन बेस 300 ले सकते हैं या 500 ले सकते हैं, उस बेस पे आपका HEQ, तो यहाँ से H1 S1 H2 S2 HN SN NS बेस, ये हम इक्विवेलेंट इनर्शिया निकालेंगे, इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट। और बिकॉज ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? √PR/m। PR इज द सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट, कितना पावर आउटपुट ले रहे हैं, पावर एंगल क्या है, और m क्या होगा? m इज इक्वल टू HS/πf होता है, HS/πf, और S आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पाई यू नो इट इज ए पाई, F इज द फ्रीक्वेंसी, सो H/πf यू कैन फाइंड द m, सो √PR/m करके आप overall frequency, if number of generators are connected with the bus, then overall frequency can be obtained √PR/m, where PR is equal to EV/X cos delta 0, and H can be, or m can be found from this formula. Is this point clear or not? ये पॉइंट क्लियर है? तरुण सागवान? यस सर। हाँ, so we need to solve the numerical questions on this also. Suppose this question is given: two generators operated in parallel with the same plant with the following. ये इसका H, ये इसका H है, ये S है। S मीन्स रेटिंग है, इनर्शिया है, और इसमें इमीडिएटली 10% लोडिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो पहले हमें इक्विवेलेंट H निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट H निकालने के लिए H1 S1, जैसे H हो गया H1 S1 प्लस H2 S2 डिवाइडेड बाई ओवरऑल रेटिंग। सपोज ओवरऑल रेटिंग हमने मान लिया 500,
तो H1 S1 H2 H2 ओवरऑल 500, इसका H निकल जाएगा H, और H निकलने पे सपोज 30% लोडिंग कर दिया तो PR बाई PM cos 30, तो उससे डेल्टा निकाल लेंगे 30 डिग्री से पावर एंगल निकाल लेंगे, cos इनवर्स 30 cos इनवर्स 0.3 उससे डेल्टा, और PR बाई M निकाल लिया, H बाई पाई F, H इक्विवेलेंट आ गया, H उससे इक्विवेलेंट M, एंड फाइनली यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो एक ये क्वेश्चन है, यू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बुक्स में और असाइनमेंट में दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली यू डू द क्वेश्चंस एंड डू द प्रैक्टिस। ओके, तो डू वांट एनी क्वेश्चन इन एनी क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हैं? सर अटेंडेंस होनी है। और सेकंड असाइनमेंट शो नहीं हो रही सर। हाँ, क्या कहना